Good afternoon, kids. Good afternoon, ma'am. How are you all? I am fine, ma'am. Okay, so kids, as you all know, today we are going to start our new chapter. What is the name of chapter? Houses, then and now. Okay, so kids, you already learn about the houses in your previous class. Means आपने आपकी पुरानी जो क्लासेस हैं, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, इनमें आपने ऑलरेडी इनके बारे में, हाउस के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है. सो एनीवन ऑफ यू टेल मी, व्हाई डू वी नीड अ हाउस? यस जानवी, व्हाई डू वी नीड अ हाउस? Very good. So we need a house because our house protects us from heat, cold, rain, wild animals and thieves. These things you already know about it. And we need a house to live in. Sit down, beta. We need a house to live in. सबसे important thing है, हमें house रहने के लिए चाहिए होता है और it protects us from heat, cold, rain, thieves and wild animals. Okay, as you know, we feel comfortable and safe in our house. हम अपने house में कैसा feel करते हैं? Safe and comfortable. Now tell me, what are the types of houses? Wait. Yes, Gunjan? Two types of houses. First, kacha house and second, pukka house. Very good. So there are two types of houses, kacha house and pakka house. Sit bacha. So what is kacha house is made up of? Wait. Yes, Manas? Straw, leaves. Very good. Kacha house is made up of mud, straw, leaves and pakka house. Pakka house is made up of, wait, yes Lakshan, bricks, cement, steel, iron, tiles, marbles. Pakka house is made up of bricks, cement, steel, iron. Okay, sit down both of you. So kids, in this chapter, and you already know about the different types of houses, just like igloos, tent, houseboat. These are some are temporary houses and some are special houses which made in different regions. अलग-अलग areas में make होते हैं ना. So in this chapter, houses then and now, तो हम इसमें क्या समझेंगे कि हाउसेज ओल्डन टाइम्स में कैसे थे और नाउ में अब मॉडर्न टाइम में आपके हाउसेज कैसे होते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं. ठीक है, स्टार्ट करें. ओके, वन डे Nitika asked her grandmother what kind of house she lived in when she was young. तो नितिका भी आप लोगों की जैसे ही स्मॉल किड थी, है ना, तो वो अपनी ग्रैंडमदर से पूछ रही है कुछ क्वेश्चंस. ओके, कि when you was young, what kind of houses you live in? आप किस तरह के हाउसेज में रहते थे? ग्रैंडमा से आप लोग भी कई बार क्वेश्चंस पूछते हो ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से. सो सेम नितिका ने भी अपने ग्रैंड मदर से क्वेश्चन पुट किया. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट व्हाट काइंड ऑफ हाउस शी लिव्ड इन व्हेन शी वाज यंग. कि अन्ना ग्रैंड मदर, जब आप छोटे थे तब कैसे हाउस में रहते थे? हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट व्हेन शी वाज यंग मोस्ट पीपल लिव्ड इन villages and built कच्चा हाउसेस. तो उसकी ग्रैंडमदर ने बताया कि जब वो यंग थे, जब वो छोटे थे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन कच्चा हाउसेस. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन कच्चा हाउसेस.
Where we found kacha houses? Very good. We found kacha houses in villages. Okay. It did not cost much. It did not cost much. मतलब वो बहुत ज़्यादा expensive नहीं होते थे. It was usually made by family members themselves. तो इनको कौन बनाता था? Family members ही अपने आप ही मेड कर लेते थे उन हाउसेस को. ठीक है. तो जैसे अभी हम लोग मैसन्स को, है ना, तो लेबर्स को, इनको क्या करते हैं, हायर करते हैं, वो हमारा हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं. बट ओल्डन टाइम में, ग्रैंड मदर के टाइम में क्या होता था, फैमिली मेंबर्स ही अपने हाउस को मेक करते थे, अपने आप ही बनाते थे खुद ही. ठीक है. काउ डंग मिक्स्ड. काउ डंग इज द वेस्ट ऑफ काउ. Waste material of cow is cow dung. Okay, cow dung mixed with mud was used to make floors. तो floor बनाने के लिए they were used cow dung mixed with mud. Means cow dung को और mud, काउडंग और मड का एक मिक्सचर बनाते थे जिससे वो फ्लोर बनाते थे. ठीक है. समझ में आया. तो हमारे मॉडर्न टाइम के जो फ्लोर्स हैं तो वो कैसे होते हैं, टाइल्स होती है, मार्बल्स होते हैं. बट ओल्डन टाइम्स के जो कच्चा हाउसेस थे इनके फ्लोर्स कैसे थे? दे आर द मिक्सचर ऑफ काउडंग एंड मड. क्लियर. ओके. This kept the insect away. तो बेटा ये जो मिक्सचर होता था इसकी वजह से उस हाउस में इंसेक्ट्स नहीं आते थे. They use mud to build the four walls. और मड से ही क्या बनाते थे? Four walls. Strips of wood were joined to make a frame. So ये जो बेटा यहाँ पे as you see in this picture, there are the wood strips make the frame. एक फ्रेम बना रहे हैं ना. इस फ्रेम से वो लोग क्या बनाते थे, आपके हाउसेस की पूरी 4 sided of walls. Okay. Straw and leaves of trees like neem and kikar were placed on the frame. Straw or leaves. Which tree? Of which tree? Neem and kikar. इनको भी वो यहाँ पर प्लेस कर देते, यहाँ पर लगा देते थे. So that termites are the insects that damage the wooden items. तो ये wooden आपके furnitures वगैरह को destroy कर देते हैं termites. They are insects. Okay, तो इनको और इनसे बचने के लिए they use neem and kikar leaves. Okay, so that termite would not harm the wood. तो क्योंकि हाउसेस किसके बने हुए थे, वुड्स का यूज कर रहे हैं ना, अभी वुड्स की फ्रेम बना रहे हैं. और यहाँ पर किसका लीव्स यूज कर रहे हैं, नीम एंड कीकर. गुड. All gunny bags were placed on these leaves. All gunny bags जिनमें आपके ग्रेन्स आते हैं, गनी बैग्स. ओके. तो इनको कहाँ पर प्लेस कर देते थे, इन लीव्स के ऊपर प्लेस कर देते थे. These building materials were covered with mud to make the roof. और इन सारे मटेरियल को किससे कवर कर दिया जाता था, मड से. ठीक है. क्या बनाने के लिए, रूफ ऑफ द हाउस. समझ में आया? क्लियर. कच्चा हाउसेज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. कच्चा हाउसेस स्ट्रॉन्ग होते थे? नो, दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग. People needed to coat the walls every week. So these houses need repair time to time. So those houses need repair time to time. तो इन houses को आपको हर वीक में रिपेयर करना पड़ता था. ओके. क्लियर. समझ में आया? ओके. नाउ so Nitika's mother lived in very big house called हवेली. अब निकिता अपनी मम्मा के पास गई, है ना. अब मम्मा से पूछा,
When you were young, where do you live? आप कहाँ रहते थे? Where were you live? आप कहाँ रहते थे? भाई जब आप छोटे थे तो आप कहाँ रहते थे? सेम क्वेश्चन उसने अपनी मम्मा से भी पूछा. अभी आपने किससे पूछा था? She asked the question from her grandmother. And what was the question? What was the question? Question was, what kind of house she lived when she was young? And she put the same question to her mother. तो उसने सेम क्वेश्चन अपनी मम्मा से भी पूछा. ओके, अब मम्मा ने क्या बताया? नितिका's mother lived in very big house called हवेली. हवेली. ओके, हवेलीज आर आल्सो फाउंड इन विलेजेस. ये हवेलीज भी आपको विलेज एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है. ओके, स्पेस वॉज नॉट अ प्रॉब्लम इन दोज डेज. तो वहाँ उस टाइम पर स्पेस की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी. लोग जो है वो बिग बिग हाउस बनाते थे. ठीक है. सो मैनी पीपल बिल्ड सिंगल स्टोरी हाउसेस. तो जो मेनली जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो सिंगल स्टोरी मीन्स वन ग्राउंड फ्लोर पर ही अपना पूरा हाउस मेक करते थे. ठीक है, मम्मा के टाइम पर. ठीक है, ग्रैंडमदर के टाइम पे तो कच्चे हाउसेस थे. ठीक है. दे यूज बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन. लाइमस्टोन में चूना पत्थर. ओके, wood, stone chips and mud bricks. तो मम्मा के टाइम पर ब्रिक्स आ गई थी. मम्मा के जो टाइम की हवेलियां थी वो लाइमस्टोन, वुड और स्टोन चिप्स और मड ब्रिक्स की बनी हुई थी. ओके, मोस्ट हाउसेज हैड रूम्स बिल्ड अराउंड अ सेंटर कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड इज आंगन. कोर्टयार्ड में okay, courtyard is a place which is in the center of a house. Okay, जितने भी रूम्स होते थे वो कोर्टयार्ड्स के चारों तरफ होते थे. और कोर्टयार्ड इज द मिडल पोर्शन. ओके, सो दिस कोर्टयार्ड इज यूज्ड फॉर प्लेइंग, for children to play, है ना, for elder to sit and chat and women to walk. ओके, एल्डर के सिट और चैट करने के लिए मीन्स टॉकिंग करने के लिए, और वुमेन्स के लिए होता था ताकि वो अपना वुमेन्स अपना जो पूरे हाउस होल्ड वर्क होता था वो वहाँ बैठ के करते थे. ठीक है, जैसे को ग्रेन्स वगैरह को क्लीन करना या पापड्स मेक करना, तो वो सब कोर्टयार्ड में करते थे. समझ में आ गया? क्लियर? तो मदर वॉज लिविंग हवेली. Nitika's mother was living and grandmother very good kacha house. Okay, now these kind of houses had high ceiling. High ceiling means the inside roof okay, the inside roof of the house is called ceiling. समझ में आया? एंड थिक वॉल्स. तो वहाँ वो जो हाउसेस थे उस तरह के, उस टाइम के जो हाउसेस थे उनकी जो सीलिंग्स होती थी, हाउसेस की जो इनसाइड वाली छत होती थी, जो रूफ होता था इनसाइड वाली. ठीक है, इनसाइड अपर सरफेस इज कॉल्ड सीलिंग. ठीक है, सो ये कैसी होती थी? बहुत ज्यादा हाई होती थी एंड थिक वॉल्स. और उस टाइम जो वॉल्स होती थी बहुत ज्यादा थिक होती थी. ठीक है, द वॉल्स kept the house cool. So what is the use of these thick walls? What is the use of these thick walls? They kept the house cool. ये हाउस को ठंडा रखने में हेल्प करती थी. Even in summers. ठीक है, people did not need air conditioners and coolers. तो उस टाइम पे लोगों को ना तो एसी की जरूरत होती थी और नॉट कूलर्स. ओके, इन समर्स एज वी नीड टुडे. तो आज तो हमें विदाउट एसी वी कैन नॉट लिव. हाँ, विदाउट एसी, विदाउट कूलर वी कैन नॉट लिव टुडे इन समर सीजन. ओके, दीज आर आवर बेसिक नीड. ये तो हमारी बेसिक नीड है, एसी होना ही है. द किचन वॉज बिल्ड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर रूम्स.
जो किचन होती थी वो बहुत थोड़े से डिस्टेंस पर होती थी, रूम से थोड़े डिस्टेंस पर होती थी। वाई? टू प्रिवेंट द स्मोक फ्रॉम एंटरिंग द रूम। तो स्मोक फ्रॉम द किचन नॉट एंटरिंग इनसाइड द रूम। तो जितना स्मोक आती है किचन से वो किसी भी रूम में एंटर नहीं कर पाए, इसलिए वो किचन को थोड़ा सा डिस्टेंस पर मेक करते थे। ओके, इवन द बाथरूम्स वर बिल्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर रूम्स। मीन्स कि जो आपके बाथरूम्स होते थे, जो वॉशरूम होते थे, ठीक है, आज तो आपके रूम्स के अंदर ही वॉशरूम्स होते हैं। मॉडर्न टाइम में अभी हमारे जो हाउसेज हैं वहाँ हमारे वॉशरूम कहाँ होते हैं? हमारे रूम्स में, ठीक है। बट नितिका की मम्मा के टाइम पे क्या था? वॉशरूम जो है वो रूम से डिस्टेंस पर होते थे, ठीक है। क्लियर? नाउ टाइम हैव चेंज नाउ। अब टाइम कैसा हो गया है? चेंज। अब नितिका के टाइम जो है, अब इस टाइम के हाउसेस कैसे होते हैं, ठीक है। ग्रैंड मदर का टाइम हमने रीड कर लिया। ग्रैंड मदर वॉज लिव इन कच्चा हाउसेज विच आर मेड ऑफ मड, लीव्स, स्ट्रॉ, सो दे आर नॉट एक्सपेंसिव, दे नीड रिपेयर टाइम टू टाइम। ओके, एंड नितिका's mother lived in big havelis. So what is the feature of the haveli? There are many rooms. Havelis are made up of limestone, bricks, okay, stone, steps, wood. Okay, there are big courtyard. Okay, in the center of the house. So lot of things we see इन द प्रीवियस पेज। ओके, हमने बहुत सारी चीजें समझी ना। अभी जो आपका प्रीवियस पेज था उसमें ग्रैंड मदर के हाउस के बारे में और नितिका की मदर के हाउसेस के बारे में। ओके, सो नाउ टाइम हैज चेंज। अब नितिका के टाइम जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल इन टाउन एंड सिटीज लिव इन पक्का हाउसेस। अब नितिका के टाइम पर जो लोग हैं मोस्टली वो कहाँ रहते हैं? पक्का हाउस में। These houses are made up of building materials like bricks, cement, tiles, marbles, iron, glass। तो इस टाइम के जो आपके बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है, उनमें क्या क्या यूज होते हैं? Which building material are used now? Cement, tiles, marbles, iron, glass, wood. Okay. So one day Nitika's father took her to a construction site. तो एक दिन नितिका के फादर उसको एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पर एक हाउस बन रहा था, ठीक है। He explained to her how a पक्का हाउस is constructed. तो पापा ने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे एक पक्का हाउस कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे बनाया जाता है। He told her that the walls are made of bricks and plaster with a mixture of cement and water. So what is the mixture of water and cement called? Concrete. This is the mixture of concrete is the mixture of it. Wait, stone plus sand plus cement plus water. Okay, concrete is the mixture of stone, sand, cement and water. Okay, तो ब्रिक्स के ऊपर ये वाला मिक्सचर लगाया जाता है ना। तो नॉर्मली जो वॉल्स होती है उस पर तो ओनली सीमेंट और सैंड और वाटर का मिक्सचर लगाया जाता है। जो रूफ टॉप होती है उस पर कंक्रीट का यूज किया जाता है। क्लियर? अंडरस्टूड? सो
In this time, now the houses were made up of bricks and plastered with mixture of cement and water. And roof of a house. We use concrete. Okay. The flooring is generally made of marbles and stones. तो जो floors होते हैं वो normally आजकल किसके बनाए जाते हैं? Marbles and stones. And nowadays we use tiles also. Tiles का भी use होता है ना? Okay. Bricks, steel, rods and cement are used to construct the walls and roofs. तो bricks, steel, rods and cement इनका यूज कब कहाँ किया जाता है? टू कंस्ट्रक्ट वॉल्स एंड रूफ. क्या बनाने के लिए? वॉल्स एंड रूफ. नाउ वुड एंड ग्लास आर यूज टू मेक डोर्स एंड विंडोज. तो डोर्स एंड विंडोज आर मेड अप ऑफ वुड एंड ग्लास. Nowadays our doors and windows of a house made up of wood and glass. Pakka houses are strong and permanent. Pakka houses are strong and permanent. Means they do not need repair time to time. इनको आपको time to time repair कराने का need नहीं है. They are very strong. They do not need repair frequently. Pakka houses have all the modern facilities. तो पक्का हाउसेज में जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटी है वो सब अवेलेबल होती है, जैसे कि मॉड्यूलर किचन, एसी, फैन, वेल फर्निश्ड हाउस होता है आजकल, है ना मॉडर्न टाइम में. द किचन, टॉयलेट एंड द बाथरूम आर इनसाइड द हाउस. हाउस के अंदर प्रॉपर किचन, टॉयलेट, ओके, बाथरूम, ये सब उस हाउस के अंदर होता है. ओके. Pipes are put in the kitchen and the toilets to take away the waste. तो पाइप लगाए जाते हैं कहाँ पर? किचन एंड टॉयलेट्स में. क्यों? टू टेक अवे द वेस्ट. जितना भी आपका वेस्ट वाटर है उसको बाहर निकालने के लिए. There is a proper drainage system. तो आपका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है जहाँ से आपका वाटर बाहर जाता है, जहाँ पे प्रॉपर लाइन्स मेक होती है आपके हाउसेज में. ओके. तो वो कैसा होता है? बिल्कुल प्रॉपर होता है. These houses are properly ventilated. बिल्कुल वेल वेंटिलेटेड मीन्स एयरी विंडोज, मतलब बहुत सारी विंडोज होती है, नंबर ऑफ विंडोज होते हैं, डोर्स होते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, एयर आने का अच्छा सा स्पेस होता है. ठीक है. बिग बिग विंडोज होती है with a number of doors and windows. These houses are more expensive. These houses are more expensive. Means ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं. Nowadays there is a shortage of land. चलो इतना समझ में आ गया आपको पक्का हाउसेस के बारे में. They are very expensive but they are not need repair time to time. There are very modern facilities. बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है आजकल हाउसेज में, है ना. ओके. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. यू सी दिस टाइप ऑफ स्टोरीज नियर योर हाउसेज आपको दिखने को मिलती है ना. तो ये क्यों बनाई जाती है? ओके. व्हाई दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आर बिल्ड अप नाउअडेज? तो नाउअडेज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड. आजकल क्या हो गया? लैंड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है, कमी हो गई है, लैंड कम है और पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. रोज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड तो उतना ही है, लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते. ओके. तो वहां पर शॉर्टेज हो रही है किसकी? लैंड मीन्स जगह की शॉर्टेज हो रही है. कहाँ पर? इन द सिटीज. तो विलेजेस में भी लोग माइग्रेशन कर रहे हैं सिटीज में बेटर फैसिलिटीज के लिए, है ना, एजुकेशन के लिए. तो विलेजेस से भी लोग कहाँ आ रहे हैं? सिटीज में आ रहे हैं. ठीक है. द शॉर्टेज ऑफ स्पेस हैज लीड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. तो शॉर्टेज की वजह से ही आपके सिटीज में
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आजकल कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, ओके, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोग विलेजेस से माइग्रेशन कर रहे हैं सिटीज के लिए, ठीक है। These buildings are very tall and have many floors. तो इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में क्या होता है, कैसी होती है, बहुत ज्यादा टॉल मीन्स बहुत ज्यादा लंबी होती है, एंड हैव मैनी फ्लोर्स, यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। ईच फ्लोर हैज मैनी हाउसेज, और हर एक फ्लोर पर भी बहुत सारे हाउसेज होते हैं। ईच हाउस इज कॉल्ड फ्लैट और अपार्टमेंट, और उस फ्लोर पर जितने भी हाउस होते हैं उसे बोलते हैं हम फ्लैट या फिर अपार्टमेंट। क्लियर? तो देयर इज सम एमसीक्यूज क्वेश्चंस। मोस्ट पक्का हाउसेज आर फाउंड इन, मोस्ट पक्का हाउसेज आर फाउंड इन cities. And which one of the following building material is not used to build हवेली? हवेली बनाने के लिए इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो यूज नहीं होता? Very good, straw. Understood? Yes, ma'am. What are multi-story buildings? Tall buildings with many floors. Okay? Why they are built? वो क्यों बनाई जाती है? Because of the shortage of space. Okay? Now bungalow. Let's talk about bungalow have many rooms. Bungalow जो होता है it's very big, बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पर भी बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने रूम्स होते हैं? It has many rooms. कितने भी रूम्स होते हैं? 10, 12, 11, 20. बंगलों में कितने भी रूम्स हो सकते हैं ना। They also have lawn and garage. यहाँ पर लॉन भी होता है और गैराज भी होता है। आजकल स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, है ना। Some big bungalows have swimming pools as well. तो बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, ठीक है। Okay, now kids, research based learning. तो आपको क्या रिसर्च क्या करना है और समझना क्या है। तो द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग इज बुर्ज खलीफा। वेयर इट इज सिचुएटेड? It is situated in Dubai. What is the spelling of Dubai? D-U-B-A-I. Okay. So it says that it has 163 floors. How many floors in Burj Khalifa? 163 floors. And you have to find 2 more unique facts about these buildings. आपको इस बिल्डिंग के बारे में कुछ यूनिक फैक्ट लेके आने हैं एंड डिस्कस करना है दैम विद योर पार्टनर, और आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है। ओके, सो दिस इज फॉर यू, यू डू इट एट योर होम। ओके, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। क्लियर? ओके, नाउ Nitika's father told her that many people are involved in the construction of a house. तो नितिका के फादर ने उनको बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो कौन कौन से पीपल्स हैं? दे आर आर्किटेक्ट, मैसन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, इंजीनियर, and they have different kind of work. Okay, तो सबका अपना अलग अलग टाइप का वर्क होता है, ठीक है। किसी का कोई सेम वर्क नहीं होता है। Just like if we talk about architect makes the plan of a house. Architect make plan of a house. किसी भी हाउस का प्लान बनाता है, ठीक है, इसका मैप बनाता है, किस साइड में आपको किचन रखना है, किस साइड में आपको वॉशरूम होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा प्लान कौन बनाएगा? आर्किटेक्ट। ओके,
नेक्स्ट मैसन, मैसन ले ब्रेक्स एंड प्लास्टर वॉल्स। तो आपके जो घर का हाउस होता है उसकी जो वॉल्स होती है, रूफ्स होती है, वो सब कौन मेक करता है? मैसन। ओके। कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज। कारपेंटर मेक्स doors and windows are made up of wood and glass. Wood and glass. Okay. Now plumber. Plumber fits pipes and taps. Pipes and taps. And electrician. Electrician fits wires and plugs. आपके हाउसेज में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी आइटम होता है, ट्यूबलाइट, बल्ब, स्विचेस, इन सबको कौन फिट करता है? इलेक्ट्रिशियन। पेंटर, पेंटर पेंट्स अ हाउस। किसी भी हाउस को पेंट करने के लिए किसको कॉल किया जाता है? पेंटर। ओके। नाउ इंजीनियर, इंजीनियर सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। आपके हाउस का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको सुपरवाइज करता है, उसकी देख रेख करता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? सो ऑल दीज पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। ओके। नाउ देयर आर सम MCQs. ओके। Architect. What is the work of architect? What is the work of architect? Fit water pipes and taps. Make a plan of a house. Yes, make a Part of a house. so first number. Okay. Painter. What is the work of painter? Paint a house. Very good. Painter paints a House. number second. Plumber. The pipes and What is the work of plumber? fits water, pipe and tap. Very good. Fits water pipes and Tap. taps. And last is engineer who supervise the construction of a House. house. So number 4 is there. Okay. Clear? Now tell me. Number 3, 4, 4th and second. Where it is? And four. Huh? Fourth का answer third. Where it is? Number B. Yes, it's third now. First is third and second is first. Third is third is third. No, it's not. Now again beta, it's very complicated. We'll do in our next class. Okay, you understood it? Okay, clear? Now next is slum areas. Let's we talk about slum area. Okay. One day Nitika's father took her to a place where people live in small houses. तो एक दिन नितिका के फादर उसको कहाँ लेके गए थे? जो हाउस कैसा था? बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल था और मेड अप ऑफ किसका बना हुआ था? स्टोन, मड एंड प्लास्टिक शीट्स का बना हुआ होता। ठीक है, ऐसे एरिया में उसको लेके गए। These houses stood close to one another. तो ये जो हाउसेस थे वो एक के पास एक थे, स्मॉल थे और वन बाय वन एक के पास में एक थे, ऐसे मतलब एक दूसरे से पास में टच थे। ठीक है, इनके बीच में कोई गैप नहीं था। ठीक है, एंड हैड रूम्स मेड ऑफ आयरन एंड टिन शीट्स। और इनकी जो रूफ थी, इनकी जो छत थी वो किसकी बनी थी? आयरन और टिन शीट की बनी हुई थी। ठीक है, नितिका also noticed that there was no proper arrangement, कि वहां पर कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। ओके, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज इस एरिया में नहीं थी। जो स्लम एरियाज में रहते हैं ना, ठीक है, वहां पर बहुत ही पुअर पीपल्स रहते हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छा हाउस को मेक नहीं कर सकते, मॉडर्न टाइप के हाउसेस को नहीं मेक कर सकते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव लॉट्स ऑफ मनी। इनके पास मनी प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, पक्का हाउसेज आर वेरी एक्सपेंसिव और वो इसको नहीं बना सकते हैं, तो नहीं कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, तो वो लोग को स्लम एरियाज में रहना पड़ता है। ठीक है,
तो ये जो एरिया होता है बहुत ही ज्यादा डर्टी रहता है, ठीक है। यहाँ पर लोगों में हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ के लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, और अगर इनको वाटर लेना होता है तो एक कॉमन टैब होता है, ठीक है। तो वहीं जाकर के ये वाटर फिल करते हैं अपना जो रेगुलर उनको जो यूज के लिए चाहिए होता है, ठीक है। हर फादर टोल्ड हर दैट द प्लेस वॉज स्लम एरिया। तो ये प्लेस कैसा होता है? स्लम एरिया। तो यहाँ पर आपको ऐसे कच्चा हाउसेस टाइप ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। He also told her that living condition in slum were bad. कि जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं उनकी जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा बैड होती है, बहुत ही ज्यादा बैड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट इज दिस। You see the picture of slum? हाँ, see in your book. She felt sad when her father told her that slum was growing day by day. तो उसको कैसा लगा? उसको वो बहुत बुरा लगा। She felt very sad. उसको बहुत दुख हुआ कि इस टाइप के जो स्लम एरियाज हैं वो आजकल डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। She was a bit relieved to hear that government was trying hard to improve the living condition of slum dwellers, ठीक है। तो उसको ये सुनकर के भी थोड़ा सा रिलीफ हुआ, थोड़ा सा अच्छा लगा कि गवर्नमेंट जो है वो इनके लिए कुछ प्लान्स बना रही है, ठीक है। टू प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट हाउसेज फॉर दैम। तो उनको वो क्या कर रही है? कुछ कम कॉस्ट पे हाउसेस प्रोवाइड कर रही है। तो नितिका को अच्छा लगा कि इनका हाउसेस तो बहुत ही ज्यादा डर्टी है, ये कैसे एरियाज में रह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अनहाइजीनिक प्लेस है ये, बहुत ज्यादा ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना वाटर सप्लाई है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो हाउ दे पीपल लिव हियर, ये इस टाइप के ये लोग यहाँ कैसे रह पाते हैं, कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनके लिए कुछ प्लान मेक कर रही है जिसमें ये इनको कम कॉस्ट पर हाउसेस प्रोवाइड करवा रही है। She believes that every person had a right to a decent living. तो उनको ये विश्वास हो गया, मतलब उसको वो ये इस बात पे बिलीव करती है कि हर एक पर्सन को अच्छे से रहने का अधिकार है। ओके, एवरी पर्सन हैज राइट टू अ डिसेंट लिविंग। हर एक पर्सन को अच्छे से रहने का हक है। हर एक पर्सन के पास इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, प्रॉपर वाटर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? ओके, नाउ बेटा दिस एक्सरसाइज लेट मी कंटिन्यू इट। ओके, सो फोर्थ नंबर इज नंबर सेकेंड एंड सेकेंड इज फोर्थ, सेकेंड इज फोर्थ एंड थर्ड इज फर्स्ट, दिस वन, एंड फोर्थ इज third, this one. So this option is the correct answer. Okay, so kids, your chapter is complete. Okay, and you have to read this chapter at your home. Okay, we will discuss all other exercise in our next class. Okay, goodbye and take care, beta.